Yeah. So as you know, in break-even analysis, we have covered all this point, how to find out the like break-even revenue, contribution margin ratio, break-even point in units, break-even point in sales. I've asked you to do all these questions, even. We have already done about the desired or target profit, pre-tax profit. Okay, we've also done these kind of questions in the slides. I have already asked you to practice this. If I okay, let's do this question. I will explain this question to you. The following illustrates the calculation of required pre-tax profit. Okay, so we have already done like how much sales you need to do to get a target profit, or if you have set a target like how much revenue, like target revenue to get this desired profit, what they will mention in the question. Let's do this question and once again refresh our concept, and then we will go ahead with some other questions. So the following illustrates the calculation of a required pre-tax profit. The selling price is $4. Okay, that is per unit, as it is clearly visible. Variable cost is given. Fixed cost is like always going to be in totality, and the company must achieve a minimum pre-tax profit. This is the desired profit. This is the desired profit. And what is the sales level? So how much you need to sell to get this $5,000 as profit? We have done such kind of questions. The contribution margin is 1.80 per unit. Okay, and specified pre-tax profit, since the specified pre-tax profit is required, the numerator is fixed cost plus, so you know, like already we have done such kind of questions. So fixed cost plus the pre-tax profit divided by the contribution margin per unit. So this is the number of units we need to sell to get this profit. But if the question comes, what would be the target revenue? So the units what you have here. Okay, so 5,334 units. Just a second, I'll tell you. So even you can calculate with your calculator. Okay, so what you can do here is, this is the units. Okay, so if we want to convert the things into units, okay, we want to convert from units to revenue. Small adjustment you need to do, just multiply the number of units with selling price per unit. Instead of doing all this long calculation, directly you can do by multiplying this 5334 into 4. Now do this 5334 into 4. You are getting 21,336 or 334, whatever it is. Okay, or else if you don't want to do, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, units hai. This is the number of units what you need to sell to get this target profit. If you want to convert this into dollars, you can do that. Directly selling price per unit से multiply कर दो $4 से. नहीं तो जो भी क्वेश्चन है उसको contribution margin ratio से divide कर दो. Contribution margin ratio is nothing but contribution by sales. So 0.45 से divide कर दो, you'll get the answer. Okay. Now let's do this. So now we are doing a proof here whether you are able to get that profit or not. So revenue we got, देखो मैं आपको जो बताया था ना, units you got 5,334 units, उससे into selling price कर दो, you'll get the revenue. Same thing which you have calculated by dividing with contribution margin ratio. Instead of that, 5,334 into $4 per unit will also give you this. And variable cost is 2.20 into 5,334 units. You got contribution. Now from that fixed cost, if you remove, you'll get the net profit. That's it. You got the profit. And this also we have done yesterday. Now we will see about the adjusted thing and do the question. Okay. So target pre-tax profit as a percentage of sales revenue. So if you want pre-tax profit, so target pre-tax profit. So required pre-tax profit percentage of the revenue. Okay. That how much percentage you are thinking that you want as a pre-tax profit into selling price per unit. So मतलब आपका जो भी मतलब if there is a question
target pre-tax profit per unit is nothing but required pre-tax profit percentage of the revenue into selling price. अच्छा, target pre-tax profit requirement becomes an additional variable cost used in the calculation of an adjusted contribution margin per unit. देखो अभी क्या होता है, adjusted contribution margin per unit कैसे find करेंगे आप? How will you find out adjusted contribution margin per unit? To find out adjusted contribution margin per unit, sales minus variable cost is contribution. Yes, everyone knows. But if you want to find out adjusted contribution margin per unit, sales minus variable cost minus target profit. Target pre-tax net income per unit. आपको आ जाएगा adjusted contribution margin per unit. Okay. अब to calculate the target volume, divide the total cost, total fixed cost divided by adjusted contribution margin per unit. अगर एडजस्टमेंट की बात हो रही है, नहीं तो वो पुराना क्वेश्चन आप जो पुराने फॉर्मूलेज यूज किए वो इनफ है, ठीक है ना? सो लेट अस रीड दिस विद सेंटेंस. द टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट में इंस्टेड बी स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू. ये आपका टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट है, इसको आप अपने सेल्स रेवेन्यू का कोई परसेंटेज के हिसाब से भी चेक कर सकते हो. सपोज मैं मेरा सेल्स किया 10,000 का, मैं अपना टारगेट प्रॉफिट 20% लगा के रखा तो 2,000 आएगा. ओके, टैक्स है, अगर उसमें आफ्टर टैक्स पूछेगा तो आई नीड टू डिडक्ट द टैक्सेस. नाउ टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट बिकम्स एन एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट. जो भी आपका टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट है ना, जो आप टारगेट बना के रखे हो, वो एक एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. ओके, क्यों हो जाता है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से मैं अगर वो भी निकाल दूंगा, मतलब मेरा नॉर्मल कंट्रीब्यूशन में से, सी कंट्रीब्यूशन आने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द फॉर्मूला. दैट इज द फॉर्मूला. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन, बट यू वांट एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन. सो एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन के लिए जो एडिशनल आप जो प्रॉफिट का एक एस्टिमेशन बना के रखे हो ना कि मेरा टारगेट है, वो माइनस कर दो, यू विल गेट एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन. ओके, sales minus variable cost is generally contribution, but contribution minus fixed cost is profit. अब यहां पर क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन का. एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस टारगेट प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट. ओके, एंड टारगेट वॉल्यूम चाहिए अगर आपको. सो टू कैलकुलेट टारगेट वॉल्यूम, डिवाइड द फिक्स कॉस्ट बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन. ओके, so to calculate target revenue, divide the total fixed cost by adjusted contribution margin ratio. Adjusted contribution margin ratio अगर यूनिट्स में चाहिए, अगर यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अगर डॉलर्स के टर्म में चाहिए तो टोटल कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. दैट्स इट, सिंपल. आई एम टेलिंग यू, अगर आपको टारगेट वॉल्यूम या डिजायर्ड वॉल्यूम यानी कितना यूनिट्स बेचे तो मेरे को टारगेट प्रॉफिट आता, कितना यूनिट्स बेचे तो मेरे को टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा, वो आप निकाल रहे हो, तो वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक यूनिट्स वाइज, एक डॉलर्स और रेवेन्यू वाइज. यूनिट्स वाइज करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, और अगर, अच्छा सिंपल शॉर्टकट है इसका फॉर्म, इसका जो भी आंसर आएगा ना, सपोज 1,000 यूनिट्स आया, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिला दिए तो भी आपको आंसर यही आ जाएगा. और एल्स टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो करेंगे तो भी आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर आ जाएगा. चलो ये भी हो गया. इसका क्वेश्चन है, सॉल्व करो, आपके सामने क्वेश्चन है. चलो जल्दी सॉल्व करो प्लीज, उसका प्रूफ भी दिया हुआ है. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. जल्दी, आज मेरे को बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फिनिश करना है. आई एम गिविंग यू टाइम. इफ एनी डाउट्स यू कैन रेज.
Okay, the things are very clear. This is a total fixed cost divided by selling price per unit minus the variable cost minus the target profit per unit. कैसे मिला आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है. How did you find out? 35% of selling price. So sales price is $4. 35% of $4 is 1.40. Okay. तो ये आपको यूनिट्स में आ गया. इसको इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे तो भी आपको 46,000 आएगा. देखो 11,500 इंटू 4 करो. 11,500 इंटू 2 इज 26,000. ओके, 23,000, सॉरी 23,000. 23,000 इंटू 2 इज 46,000. तो ऐसा भी आ जाएगा. और एल्स यू हैव वन मोर फॉर्मूला, total fixed cost by contribution margin ratio. Contribution margin ratio is nothing but, what is that? 0.40 contribution by sales. Okay, so contribution, how will you get? This is what you got, adjusted contribution. So adjusted contribution by sales, so you will be getting 46,000. Now 46,000 minus variable cost gives you this much contribution. Fixed cost minus करोगे तो आपको like 16,100 you will get. That is exactly 35% of 46,000. That's it. After tax we have seen yesterday. ये भी हो गया हमारा. ये क्वेश्चन भी कर लो फटाफट. चलो, we'll go for the next one. फॉर्मूलेस भी है यहाँ पर, एक बार रिव्यू कर लो एंड क्वेश्चन करो. घर पे करते कि नहीं, आई डाउट. यहाँ तो कर लो. Okay, oh, just a second. So if you have done with this, I'll move for the next one. चलो ये भी एक सेक्शन देख लेते हैं. Then we can do this question. This will be totally done, and we'll see increasing market cost. That also there will be a small adjustment which we need to adjust. Okay, we'll go through this, not a problem. चलो ये एक हम लोग अभी एक फॉर्मूलेस को डिस्कस करते हैं, एंड विल गो फॉर द क्वेश्चन. टारगेट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट वी हैव सीन राइट नाउ बिफोर टैक्स प्रॉफिट. नाउ वी आर सीइंग विद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट. वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपको. टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट को डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करने का है. यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. अब टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट हाउ विल यू गेट? Required after tax profit percentage of the revenue into selling price. ठीक है. देखो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट, इससे पहले भी आप किए ना. प्री टैक्स प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय 1. yesterday also we have seen that, and यहां पर भी आपने किया था ना अभी. टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो वही चीज आपका यहां पर रहेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. बस उतना ही फर्क है. So just a second. Target pre-tax profit per unit. Okay, so required after-tax profit percentage of revenue into selling price. मतलब कुछ नहीं है, आप अपने रेवेन्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो कि कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 1 माइनस टैक्स रेट, विच विल गिव यू प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट. ओके. आफ्टर टैक्स में क्या किए थे आपने? डिवाइड कर दिया था. देखो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, ये प्री टैक्स प्रॉफिट है. अभी मैं आपको इजीली बता देता हूं यार, आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो ना फॉर्मुलेस देख के. विल गिव यू अ स्मॉल क्लैरिटी. देखो यार,
pre-tax profit into 1 minus tax rate will give you after tax profit. कॉमन सेंस लगाना यार, फॉर्मुलेस को कभी भी मगअप नहीं करना. सपोज अभी प्री टैक्स प्रॉफिट मेरा $10,000 है, टैक्स रेट 40% है, 1 माइनस 0.40, तो मुझे क्या आएगा यार? इट इज नथिंग बट 0.60. 10,000 इंटू 0.60 इज 6,000. ये टैक्स कट करने के बाद का प्रॉफिट है, वही हम कर रहे हैं. अब आपको क्या करना है? प्री टैक्स प्रॉफिट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट आफ्टर टैक्स है. आपको प्री टैक्स ही चाहिए, तो प्री टैक्स ही चाहिए तो क्या करेंगे? जो भी आपके पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से, है ना? यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां ले जाके डिवाइड कर दो, आपको फिर यही आ जाएगा. मैं आपको करके दिखाता हूं. 6,000 इज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय 1 माइनस 0.40 इज इक्वल टू प्री टैक्स प्रॉफिट आएगा आपको 10,000. 6,000 डिवाइड बाय 0.60 इज 10,000. फिनिश्ड. आया ना? बस यही चीज है यार, थोड़ा छोटे छोटे चीजें समझना पड़ता बस. सो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट सेल रिक्वायर्ड, मतलब ये क्वेश्चन देखेंगे तो वैसी क्लैरिटी आ जाएगा आपको, बट हम एक बार फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगा आपका ऑफ रेवेन्यू सेलिंग प्राइस पर, मतलब आफ्टर टैक्स ले रहे हैं आप. देखो आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो प्री टैक्स आएगा. देखो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय 1 माइनस टैक्स रेट किए तो प्री टैक्स आया ना. आफ्टर टैक्स आपका कितना था? 6,000. 1 माइनस टैक्स रेट किए तो प्री टैक्स आया कि नहीं आया? बस वही हो रहा है वहां पर भी. ठीक है. एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मतलब वही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट. और फिर यहां पर भी वॉल्यूम में भी मार्जिन रेशियो करना पड़ेगा. टोटल रेवेन्यू इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ये भी एक फॉर्मूला अपने को पता है. ये टारगेट रेवेन्यू, सॉरी. हाँ. चलो ये क्वेश्चन करो बॉस. अभी जो भी किए हैं उसी का क्वेश्चन है यहाँ पर. इसको पूरा कैलकुलेट करें तो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे अभी अपन इसमें. रीड करो क्वेश्चन. चलो, for a company with a sale price per unit of $4, okay? For a company with a sale price per unit of $4, variable cost दिया हुआ है, fixed cost दिया हुआ है, and tax rate is 20, and the after tax net income requirement, मतलब after tax net income जो है वो 20% of sales है. तो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $4, उसका 20% कैलकुलेट करूंगा तो पर यूनिट टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट मुझे आ जाएगा. टारगेट प्रॉफिट वो भी आफ्टर टैक्स टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया है बॉस. द आफ्टर टैक्स यानी टैक्स कट करके नेट इनकम रिक्वायरमेंट जो है वो 20% रेवेन्यू का. तो मेरा टारगेट, ये भी टारगेट है, रिक्वायरमेंट बोल दिया ना. When you speak about requirement, it means target or desire. Okay. So the target after tax profit per unit desired profit is this much. Target मतलब डिजायर ही होता है. अब इसको मुझे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? डिस डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. बिफोर टैक्स आ गया या प्री टैक्स आ गया, जो भी बोलना है बोलो. प्री टैक्स है, बिफोर टैक्स. तो अब ये मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट है, ठीक है ना? तो
अब मुझे ये देखना है कि ये प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट कमाने के लिए मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, कितना सेल्स करना पड़ेगा, या वो वॉल्यूम, वो टारगेट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो डिजायर्ड सेल्स क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो अब देखो, अब हमें उसके लिए आपको एक बात याद है और याद रखना भी है, टू फाइंड आउट द डिजायर्ड सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और टारगेट सेल्स और टारगेट वॉल्यूम जो बुक की लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो आपके पास क्वेश्चन में 4600 दिया हुआ है। सी, आप हमेशा कुछ भी क्वेश्चन करो ना, ये टाइप के क्वेश्चन, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है। हम ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं? हमको क्वेश्चन में बोला है कि टारगेट वॉल्यूम और डिजायर्ड सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स वी नीड टू फाइंड आउट। इसका फॉर्मूला क्या है बॉस? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट क्या है आपका, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां हमको एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन लेना है। हाउ विल यू टेक दैट एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन? जस्ट अ सेकंड। हाउ विल यू टेक दैट एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट। तो आपको एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन आएगा ये केसेस में जहां पर टारगेट वॉल्यूम की बात चल रही है और जहां पर आपके पास टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट भी है, जो आपको मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग योर, लाइक वी हैव डन राइट नाउ, सेल्स रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप परसेंटेज। ओके, सो विल गेट दिस। सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल, मतलब ये हमें क्यों चाहिए ये एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन? बिकॉज नाउ द फॉर्मूला हियर इज फिक्स कॉस्ट बाय दिस एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन। ओके, so we have this target pre-tax profit. Now adjusted contribution is sales minus variable cost minus the target pre-tax profit. We got the contribution, okay, per unit, adjusted contribution. Now fixed cost by adjusted contribution is nothing but the desired number of units what we need to sell to get this per unit प्री टैक्स प्रॉफिट्स, है ना? एक डिजायर प्रॉफिट आप इसमें बना के रखे हो ना कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए कितना बेचना है, इतने यूनिट्स बेचना है। नाउ वी विल कन्वर्ट दैट इनटू डॉलर, दैट इन डॉलर टर्म्स। तो ये आपका 7000 यूनिट जो भी है आपका, ठीक है, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। तो 7000 इंटू 4 कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आपको 28,000 डिजायर्ड रेवेन्यू भी आ जाएगा या टारगेट रेवेन्यू में आ जाएगा। और एल्स यू कैन फाइंड आउट दिस टारगेट रेवेन्यू विद वन मोर फॉर्मूला। फॉर्मूला इज नथिंग बट fixed cost by contribution margin ratio. So now you have to again find out the contribution margin ratio. What is the contribution margin ratio? Contribution by sales. Contribution क्या है आपका? Adjusted contribution 0.65714 divided by $4, ये आ जाएगा। इसको फिर 4600 से डिवाइड करो, you'll get the desired revenue और target revenue. Okay, अब प्रूफ कर लो। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट निकाला, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट निकाला, नेट इनकम बिफोर टैक्स आ गया, आफ्टर टैक्स काट दिया, आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये रेवेन्यू, ये जो भी आपको नेट इनकम आया इसको डिवाइड करो आपके सेल्स से, इट विल बी एग्जैक्टली 20% व्हाट वी डिजायर्ड। ओके, 20%। चलो बॉस एक बार इसको चेक कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट अवे राइट नाउ, आई एम वेटिंग। So these are all chain of events. Why are we finding all these things? To put in the formula. फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट जो है, फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है ये। फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट आपको क्या करना है? एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए? सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, बट मेरे पास क्या नहीं है? टारगेट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स नहीं है। वो मैंने फाइंड कर लिया, बस वो पुट किया। आई गॉट द एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आई डिवाइडेड, I got the target volume in units. Now I converted that into sales or in dollar terms, and I have just done the proof. Okay, इसको पूरा check करो. We'll go for the next one. Fine, fast. Got any doubts? You can ask. चलो, very good, perfect people. I like that, and I want you to be always perfect.
If you have any doubts, you can ask me, or else I'm moving forward. So we are done with this chapter. Okay. अब ये टॉपिक तो हो गया. Now let us do this. Now let us take the next section using break-even analysis in decision making with certain changes. Now break-even analysis can also be used in two specific decision making situations: determining if the company should increase fixed marketing costs, determining if reducing the sales price will increase profits. तो ये दो सिचुएशन में भी हमको ब्रेक इवन एनालिसिस से ये देखना है कि हमको कुछ like benefit हो रहा है कि नहीं हो रहा है. One particular thing is, see, everything is done for profits in the world. Okay, so whether increasing the fixed market costs, if the company is considering to increase some fixed cost, or if the company is considering to reduce the selling price. So selling price like अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली सेल्स ज्यादा होगा. सेल्स ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट्स ज्यादा आ सकता है ना. या मार्केटिंग कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो भी हमारा सेल्स ज्यादा होगा और उससे भी हमको ज्यादा प्रॉफिट्स आ सकता है. आपको प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा? प्रॉफिट इन क्वांटम, यानी प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ लाइक मोर कैश. मतलब आपके पास सपोज अभी अब मैं एक यूनिट बेचता हूँ, 100 रुपए में एक चीज बेचता हूँ, उसमें 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट है. ऐसे अगर मैं एक ही बेचूंगा तो 20 रुपीज ही आएगा. ऐसे अगर मैं 100 बेच दूंगा तो 2000 आ जाएगा. तो अगर आपको ज्यादा सेल्स करना है तो या तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा या तो सेलिंग प्राइस आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. इफ आई एम कंसिडरिंग दिस टू सिचुएशंस, देन आई एम गोइंग टू सी हाउ इज गोइंग टू वर्क आउट. ओके, चलो. फर्स्ट सिचुएशन वी आर सीइंग इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स. चलो एक बार ये रीड करो, मैं एक बार पानी पी के आता हूँ यार, एक सेकेंड. Okay, so you can see there like target volume. So now you are seeing how many units you need to sell to attain the target income of 5,000. So one method of increasing sales is investing in additional marketing. That is understood fact. When a company considers additional fixed marketing costs, it must determine. So I already told you here, आप अगर अपना रेवेन्यू को बढ़ाना है, आपको रेवेन्यू को बढ़ाने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा. So either you have to increase your marketing cost, okay, that is of fixed nature. कितना भी मार्केटिंग, अगर आप 500,000 यूनिट्स भी बेचोगे तो आप कितने भी मार्केटिंग कर लोगे, यू विल पे फिक्स सैलरी टू योर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स. ओके, और you need to decrease your selling price. So in either cases you can increase your sales volume and increase your profits. So like बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोग को कॉमन सेंस लगा के समझना है बस. एक जनरल बिजनेस में भी अगर कोई होगा तो जनरल बिजनेस माइंड लगाओ. So like one method of increasing sales is investing in additional marketing. When a company considers additional fixed marketing cost or any additional fixed cost, it must determine if revenue generated by the additional cost will be greater than the additional cost. मतलब आप जो खर्चा लगा रहे हो ना, एटलीस्ट जो रेवेन्यू आपका आएगा वो खर्चे से ज्यादा होना चाहिए. सी व्हाट दे आर सेइंग, अ सिंपल थिंग. आई एम पुटिंग सम कॉस्ट ऑफ $2,000, $2,000. एटलीस्ट मुझे $4,000 का रेवेन्यू आना चाहिए, तभी वो कॉस्ट मुझे वर्कआउट होगा, और एल्स इट विल बी अ स्टुपिडिटी. ओके, सो नाउ
To repeat the example used previously, company X has 4,600 in fixed cost. Selling price $4 per unit है, वो सब ठीक है. And operating income of $5,000. Target, they have set a target. And its contribution margin is sales minus variable cost. So the volume needed to attain the target pre-tax operating income is 5,334. इतने यूनिट्स को बेचना है उनको $5,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए. बट नाउ द कंपनी इज चेंजिंग द सिचुएशन. अब वो सिचुएशन क्या चेंज कर रहे हैं देखो. कंपनी एक्स इज प्रेजेंटली सेलिंग ओनली 5,000 यूनिट्स. सिर्फ 5,000 यूनिट्स बेच रहे हैं बॉस, ठीक है ना. विच इज नॉट इनफ टू मीट इट्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट. ओके, अभी उनका प्रॉफिट रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है. अब उनका प्रॉफिट रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है, तो उसके लिए व्हाट दे आर थिंकिंग इज दे वांट टू इंक्रीज देयर फिक्स्ड कॉस्ट. अभी उनका फिक्स कॉस्ट कितना है? 4,600. सॉरी, दिस इज नॉट वर्किंग. You already know that 4,600 is their fixed cost. Now they want to increase their fixed cost. They want to increase their fixed cost further. Okay, why they want to increase their fixed cost further? To generate more revenue and to generate more profits. So company अभी suppose 5,000 units बेच रहा है, उसको enough नहीं हो रहा है, and to increase the sales, company X management is considering a new marketing program that would cost $1,000. तो वो $1,000 4,600 को add कर दो बॉस. 4,600 प्लस $1,000. और उनका रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या है? पहले से ही प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000. तो अब कंफ्यूज मत हो ना. 4,600 ये है, प्रोपोज मार्केटिंग ये नहीं. प्रोपोज मार्केटिंग इज 1,000 ओनली. वो आगे पीछे ले रहे हैं, वो पता नहीं क्यों ले रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है. डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सो दिस मच यूनिट्स दे हैव टू सेल. ओके, अगर वो अपना मार्केटिंग कॉस्ट को बढ़ाते हैं, इफ दे इंक्रीज देयर मार्केटिंग कॉस्ट, वो मार्केटिंग कॉस्ट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उनका सेल्स ज्यादा हो. सेल ज्यादा हो रहा है ना. पहले कितना सेल्स हो रहा था? 5,334 यूनिट्स. दैट मीन्स प्रीवियसली to achieve or to earn a target profit of 5,000 and there was no increment in the fixed cost, they used to sell this much units. Now there is an increment in the fixed cost, because of which the number of units would be sold more. Why? Because you are marketing additionally. ज्यादा मार्केटिंग करोगे ज्यादा सेल्स होगा, तो सेल्स भी ज्यादा हो रहा है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी अचीव हो रहा है. ओके, सो एट फर्स्ट ग्लैंस, अब हम उसको कंपैरिजन करके देखते हैं और डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं. देखो, एट फर्स्ट ग्लैंस, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट द मार्केटिंग प्रोग्राम फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज द सेल्स बाय 500 यूनिट्स. तो कंपनी एक्स इज प्रेजेंटली सेलिंग ओनली 5,000 units, which is not enough to meet its profit requirement to increase sales. Company X management is considering a new marketing program that would cost $1,000. Marketing management estimates that the marketing program fixed cost will increase sales by 500 units. Should the company spend the money on marketing program? Let us see. At first glance, it appears that company should invest the money in marketing program because the expenditure will increase sales to 5,500 units, and it is like here 5,889 or 166 more than the required 5,334. this is the required one. Okay, इससे 166 units ज्यादा ही होगा ना. 5,500 होगा तो yes होगा. However, the increased marketing expense will increase fixed cost, which will in turn increase the number of units required to earn the required profit of 5,000. मतलब अगर ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो ज्यादा सेल्स भी होगा, लेकिन ज्यादा खर्चा भी होगा. खर्चा भी हो रहा है, उसको भी तो हमको रिकवर करना है. ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग? The target volume has increased to 5,889 units because of the increase in fixed cost. Therefore, the 5,500 anticipated sales follow. The new marketing program will not be adequate. If the marketing program is carried out and the sales increase to 5,500, net income will actually decrease. Okay, so to the two income statements. तो अभी हमको क्या देखना है कि कितना यूनिट्स बेचना जिससे हमको फायदा हो. अभी हमारा टारगेट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इतना, बिकॉज द फिक्स कॉस्ट हैज इंक्रीज ना बाय $1,000. सो नाउ टारगेट वॉल्यूम आल्सो हैज इंक्रीज्ड. नाउ प्रीवियसली इफ वी यूज्ड टू सेल दिस मच, वी यूज्ड टू गेट द टारगेट वॉल्यूम, टारगेट प्रॉफिट्स ऑफ 5,000. नाउ इतना बेचेंगे तो $5,000 का प्रॉफिट कमाएंगे टारगेट.
So the target volume has increased to this units because of the increase in fixed cost. Therefore, the 5,500 anticipated sales, we thought that the sales would be 5,500. Following the new marketing program will not be adequate. क्योंकि इतना units बेचना है ना, this is the requirement. If you sell this much units, then only you can get the target profit of 5,000 when there is an increment in the fixed cost. But if you have set a target of 5,500, that would not be adequate because we have found out that it should be 5,889. So if the marketing program is carried out and the sales increase to this much, net income will actually decrease. So the two income statements below, one including the marketing program and not including the marketing program, will show us the effect. अभी suppose तुम इतना units बेच रहे हो with marketing program and without marketing तुम इतना बेच रहे थे. ओके, रेवेन्यू इतना आ रहा था, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, और अभी आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 5,600. अभी इसमें कितना फिक्स कॉस्ट है उतना ही है. ऑपरेटिंग इनकम हियर इज 4,300, हियर ऑपरेटिंग इनकम इज 4,400. so when you are increasing the fixed cost, your operating income is falling. Here it was 4,400. so in the absence of proposed marketing program, operating income is actually higher, and that it would be than it would be with marketing campaign. That's what they're showing here. यही अच्छा है ना, इसमें मार्केटिंग के बिना ही तुम्हारे को अच्छा इनकम आ रहा है. मार्केटिंग से तुम्हारा इनकम अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट बढ़ेगा तो तुम्हारा इनकम भी अच्छा आना, बट वो नहीं आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है स्ट्रेटेजी. ओके, दैट्स व्हाट, मतलब उनको इतना बेचना पड़ेगा अच्छा प्रॉफिट्स आने के लिए, ये बात याद रखो. अब 5,889 से करके देखो, 5,889 इंटू 4 करो, देखते हैं. वो तो 5,000 के प्रॉफिट के लिए, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए बोल रहा है. So 5,889 into 4 will give me 23,556. Variable cost is minus 12,100. Okay, sorry, variable cost भी बढ़ेगा ना. 5,889 into 2.20, it is 12,955. So 5,889 into 4 is 23,556. 23,556. Okay, so I'll get 10,600 as variable cost, and revenue, variable cost, and minus 5,600. Just a second. Exactly, I'll get 5,000 as my desired profit. That means if it is 5,889 with marketing, no problem, I'll get the desired profit. But if I am marketing, I should get more revenue. नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केटिंग से मेरा रेवेन्यू जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, बट मेरा कॉस्ट बढ़ गया, एंड माय ऑपरेटिंग इनकम इज स्टिल लेस. हियर विदाउट मार्केटिंग माय पोजीशन वाज गुड, but with 5,889 I have to produce this much to get the desired profit of 5,000. Okay, that's fixed. अब हम नेक्स्ट इसमें जो सिचुएशन देखेंगे, that is to reduce the selling price to increase the sales. Okay, let us see that situation even. Okay, next topic is sales mix. What is sales mix? Sales mix is nothing but you are, instead of selling considering one particular product, you are taking 2 to 3 products and combining. Let me see कितने pages हैं इसमें. 41 और एक सेशन चाहिए नेक्स्ट क्लास. मार्जिनल एनालिसिस. Okay, fine. That means more 2 sessions, this topic will be done, and other topics, risk management and all, we have already done. So now we will see the effect by reducing the selling price. Okay.
So reducing the price of products or services is another way to increase sales. तो अभी हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो $4 था. ओके, हम क्या कर रहे हैं, उस $4 से 3.75 कर लेंगे, यानी वी विल रिड्यूस $0.25 and see whether it is increasing our profits or not. So target volume to attain pre-tax operating income of 5,000. The formula is this. So 4,600 plus 5,000 divided by contribution margin per unit. So contribution कैसे मिलेगा हमारे को? Sales minus variable cost. Okay. So अभी हमारा जो sales है वो 3.75 है. Instead of $4, we have reduced the selling price. That is what we discussed. Am I right? Previously my selling price was $4. Now it is 3.75. So 3.75 minus variable cost of 2.20 is 1.55. चलो, तो ये आपका सॉरी 3.75 minus 2.20 is 1.55. So ये करेंगे तो we need to sell this much to get $5,000 if we are reducing the selling price. Okay. Now just a second, just hold on. Now we'll see whether reducing the selling price is working out or not for us. Now, so these calculations reveal that 5,000 in the pre-tax operating income has not yet been achieved because the 6,000 units projected is less than the 6,194 units needed to earn 5,000. So we need to sell this much to get 5,000. But if we are estimating कि 6,000 बेचना है, तो you cannot get your 5,000 desired profit. And we have reduced the price. So bring the company closer to its profit requirement. Even if it were not enough to generate 5,000. Let's see how. देखो, अगर मैं 3.75 करता हूँ, previously it was 4, so I'm selling how much units now? अब मेरा estimation, if I reduce my selling price, definitely I will sell more. So now my sales are 6,000. My revenue is, multiply this two, it is this much. So without price cut, my price was this much, and I used to sell this much. Revenue 20,000. Now variable cost is this. This is the variable cost. That is like 6,000 into 2.20 and 5,000 into 2.20. Fixed cost is fixed. So I'm getting a good revenue. I'm reaching near to 5,000 in this case. That is good. Only 300 less. Okay. So this is like we are going into mix. Okay, let's go for the mix. In mix, what will happen? Instead of one unit, instead of one product, you are going to see two products. Okay. तो आपको क्या करना है? Let us see the first question. मैं एक क्वेश्चन करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना. So the total sales in units of a company consist of 40% of product A and 60% of product B. There are two products here. One is 40% you need to sell. So total sales in units is 100%. For 100% achievement, product A you need to sell 40% and product B you need to sell 60%. Selling price is given for both the products. Variable cost is given. Fixed cost is also given. तो ये आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बेस्ड ऑन द, सी व्हाई वी आर डूइंग वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज क्यों करते हैं? क्योंकि इनके वेट्स आपको दिए हुए हैं कि आपको 40% इसको बेचना है, 60% इसको बेचना है. वेट आप लोग को, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा सेल कर रहे हो, ये आपके लिए कम इंपॉर्टेंट इसलिए कम सेल कर रहे हो, इसलिए उनका वेट भी दिया हुआ है आपको 40-60. So 40 0.40 into contribution plus 0.60 into 1.25 contribution. So we got the weighted average contribution. Why we found out the contribution? To find out the break-even point. What's the formula for break-even point? Fixed cost by contribution per unit. Fixed cost is 75,000. Contribution per unit is 1.35. आपको break-even point आ गया. This you got in terms of units. Now you can convert that into in terms of revenue also. Okay. बट ये आपका टोटल वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट. अब आपको 40-60 में उसको डिवाइड करना है. 40% दे देंगे तो ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा. दैट्स इट.
एक बार एक क्वेश्चन को चेक कर लो, उसके बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। Okay. The problem explained example one can also be solved by imagining a basket of goods containing both products. ठीक है, वो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप लोग होमवर्क करें ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, मतलब 40-60 लेके यू कैन डू दिस, ये कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये सम आप लोग क्या करो, होमवर्क कर लो बॉस। ओके, नेक्स्ट वन कैसे करना है। कंपनी सेल्स मिक्स 3 प्रोडक्ट्स है 2 की जगह पे, तो आपको क्या करना है, पहले कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 1 कंपोजिट यूनिट, तो वहां पर हम लोगों ने वेटेड एवरेज किया। क्यों किया वेटेड एवरेज? क्योंकि आपको उसने डायरेक्टली ये बताया था कि एक टोटल प्रोडक्ट के लिए 40 इसका 60 उसका, तो यू हैव टू डू द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन देयर। ठीक है, यहां पर दे हैव नॉट गिवन द प्रोपोर्शन एंड एनीथिंग लाइक दैट कि इसमें इतना प्रोपोर्शन इसका रहेगा। कंपनी सेल्स मिक्स कंसिस्ट ऑफ, they have already given the number of units, 25 units of A, 5 units of B and 20 units of C. Okay, तो number of units directly दिए हुए हैं, multiply करो, you'll get the total contribution. There it was in total 40-60। इसमें टोटल में देखो, एक ही प्रोडक्ट में दोनों का अलग अलग शेयर था, इसमें आपके 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं। देखो यहां पर, see the total sales in units of a company consist of 40% of product, तो टोटल सेल्स में इनका 40-60 था। So that's the reason why we have to find out the weighted average contribution। मतलब weighted average contribution का मतलब कुछ भी नहीं है यार, जो भी उनका जो शेयर था इनटू द कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर भी वैसे ही है, उनके कितने यूनिट्स बेच रहे हैं उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। तो ए का कितना यूनिट्स बेच रहा है, 25। कितना है उसका, एक सेकेंड, कितना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, 5, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना बेच रहा है, 5, कंट्रीब्यूशन कितना है, 2, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना बेच रहा है, 20, कंट्रीब्यूशन कितना है, 2, 3.50, मल्टीप्लाई कर दो। यू गॉट द कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आपका जो फिक्स कॉस्ट है $50,000 है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय द कंट्रीब्यूशन, यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अब उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लो इनटू 50। सेलिंग प्राइस कितना है, 50 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, कहां पर है 50, जस्ट अ सेकेंड, selling price 10,6,8, $50 units of 3 products। अच्छा एक सेकेंड, कॉम्पोजिट यूनिट्स हमको आ गया है इंटू 50, 25। अच्छा, अब ये कितने यूनिट्स है पूरे मिला के, 25 + 5 + 20, 50 यूनिट्स हैं। तो जो भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आया है, ठीक है, उसमें भी आपको ये जो है 243.90 आपके ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन divide the fixed cost by total contribution margin for 1 composite unit, so you'll get the number of units। Okay, अब the composite unit contains 50 units। अब ये आपको जो ये भी है, आपको number of units 50 है आपके, so 12,195 total units आ जाएंगे आपको। ठीक है, so this 50,000 is the fixed cost, divide by the 205, that is the contribution। Okay, so that you got the
एक्चुअली ये जो है ये गलत है, ये 243.90 फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। हाँ ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। ओके फाइन फाइन। वन कॉम्पोजिट यूनिट कंसिस्ट 50 यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। एक यूनिट में 50, मतलब आपका देखो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, एक यूनिट ये 3 प्रोडक्ट से बनता है। योर वन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। देखो सेल्स मिक्स है ये, मतलब आपका जो टोटल सेल्स है इन तीनों को मिक्स करके आता है। कंपनीज सेल्स में कंसिस्ट ऑफ कॉम्पोजिट यूनिट ऑफ 25 यूनिट्स, मतलब प्रोडक्ट ए के 25 यूनिट्स रहना, प्रोडक्ट बी के 5 यूनिट्स रहना, तब उसको एक सेल्स मिक्स बोलते हैं हम लोग। अभी हमको जो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन जो आया हमको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या यूनिट्स वो इतना है, लेकिन वन कॉम्पोजिट यूनिट कंसिस्ट 50 यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, मतलब हमको एक प्रोडक्ट का नहीं देखना है, वी हैव टू सी 3 प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर। तो तीनों प्रोडक्ट का मिला के 50 यूनिट्स चाहिए हमको एक कॉम्पोजिट यूनिट के लिए। तो फिर टोटल अभी हमको करना है ये 243.90 कॉम्पोजिट यूनिट्स है, और एक कॉम्पोजिट यूनिट में 50 यूनिट्स आते हैं 3 प्रोडक्ट्स के। देखो ध्यान से समझो इसको। So, see your break even is 243 something, 243.90 यूनिट्स, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और वॉल्यूम्स क्या भी बोलना है बोलो। ये जो प्रोडक्ट ए बी सी, इसमें 25 यूनिट्स है, इसमें 5 है, इसमें 20 है, ये तीनों को मिला के एक कॉम्पोजिट यूनिट होता है। मतलब एक कॉम्पोजिट यूनिट बनाने के लिए, एक कॉम्पोजिट यूनिट बनाने के लिए आपको since one composite unit contains 50 units, तो ये पूरा का पूरा वन कॉम्पोजिट यूनिट को बनाने के लिए तीनों को मिलाया तो 50 यूनिट्स चाहिए। सो फॉर वन कॉम्पोजिट यूनिट, if we want 50 units of 3 products, so 243.90 composite units के लिए कितने यूनिट्स चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 243.90 इंटू 50, 12,000 समथिंग आएगा, 195। ओके सो ये भी आ गया। एंड ईच कॉम्पोजिट यूनिट कंसिस्ट ऑफ 25, तो आप उसको डिवीजन दे दो आप, 243 इंटू 9.90 इंटू 25, ए बी सी तीनों का आ गया। अब तीनों के भी अलग अलग यूनिट्स को ले लिए आप, उनका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट निकाल के कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिए, ओके, एंड फिक्स कॉस्ट से निकाल लिया, आपको नेट इनकम मालूम हो गया, फिनिश्ड। तो यहां तक करो, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक।